After a gap, again I welcome all of you in the lecture series here. The topic now I am not taking from the organic chemistry, but it is from the inorganic chemistry, and the topic is of atomic structure. There are many contributors for the atomic structure, and two of them they are in front of you. One is de Broglie or Louis Victor Pierre Raymond de Broglie, and another is the Vernal Carl Hasselbalch. So they have many contributions regarding the atomic structure. Otherwise, we have read about what Rutherford model, Bohr model, these type of models they have been in the discussion for the past. But these peoples they have given the model for the atom, but these peoples whose pictures are in front of you, they have given many explanations which were helpful in explaining the structure of atom or model of the atom. Let us discuss regarding the atomic structure. So we will discuss first of all Bohr theory for the model of an atom or Bohr theory for the atom. What was that? Earlier there were many theories you have discussed in your lower classes. Newton-Corpuscus theory is there, Rutherford alpha scattering experiment is there, Rutherford model is there, and then the Bohr theory or Bohr model of the atom is being given. Let us see what Rutherford said. Rutherford said in his experiments, alpha scattering experiment, based upon that most of the space in the atom it is being empty, and it is atom that is a hollow, and the different whole of the mass it is being concentrated at the center that contains the proton and the neutrons. Electrons they are in the planetary motion around that nucleus or the protons. He said that whenever an electron is moving in a path around the nucleus, it is said to be orbit, but he said that this path is not a fixed path. This path is not a fixed path, and that became the drawback regarding the Rutherford model. Later on we will discuss here that what was that drawback. What Bohr only changed one statement in the Rutherford model, that the electron revolves in which the circular path around the nucleus, they are not changeable, but they are being fixed. Their position is fixed. So that was the main point regarding the Bohr model. So the electrons around the nucleus they revolve, and they are revolving in a same motion as the different planets they revolve around the sun. And remaining postulates that whole of the atom it is mass of the atom that is being concentrated at the center, electrons are revolving in a planetary motion, they all are being similar to the Rutherford model. Another main postulate regarding the Bohr theory was that electrons can revolve only in those orbits where angular momentum of the electron is mbr, that is equal to nh upon 2 pi. तो ये सर्कुलर पाथ है जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है. तो बोहर ने किस तरह से फिक्स किया? बोहर ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन केवल उसी ऑर्बिट में घूम सकता है, फिक्स ऑर्बिट में, जहां उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो दैट शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई. हियर n इज रिटन, n इज एन integer 1 2 3 4. It can be h upon 2 pi, 2h upon 2 pi, 3h upon 2 pi. He also said that whenever an electron that is present in the higher state, so here see the electron that is present in the higher state, when it jumps from the higher state to the lower state, there is a production of the or emission of the radiation or loss of energy, and that loss of energy is equivalent to the गैप बिटवीन दीज टू लेवल्स. एक ये लेवल है और दूसरा लेवल ये है. इन दोनों लेवल के बीच में कितना गैप है, दैट इज डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1. उसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो है वो वेवलेंथ यहां पर क्या होगी, प्रोड्यूस होगी. सो दीज वर सम पोस्टुलेट्स रिगार्डिंग द Bohr model of an atom.
Bohr utilized one of the concept of the quantum mechanics, and that is very much important. It was the concept of quantization. Now, what is this concept of quantization? In order to understand it, let us see this model. It is a very simple and it is a ladder that you are looking here. इस लैडर में क्या इंपॉर्टेंस है? इस लैडर की इंपॉर्टेंस इसमें कुछ नहीं है, केवल इसमें ये है कि जहां पर स्टेप बना है वहीं पर पैर रखा जा सकता है और जहां पर खाली है वहां पर पैर रखा नहीं जा सकता है. तो क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट भी इसी तरह का है कि कुछ वैल्यूज जो हैं वो एनर्जी और मोमेंटम के लिए अलॉट वैल्यूज हैं और कुछ वैल्यूज अलॉट नहीं है. जैसे यहां आपके पास ये रिलेशन आ रहा है एमबीआर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई. सो ही सेज एंगुलर मोमेंटम कैन बी, एन को 1 पुट करते हो एच अपॉन 2 पाई हो सकता है. एंगुलर मोमेंटम कैन बी, एन को 2 पुट करते हो इट इज 2h अपॉन 2 पाई. एमबीआर कैन बी 3h अपॉन 2 पाई. इसका मतलब n की वैल्यू 1 2 3 4 इंटीगर का मल्टीपल हो सकता है, इंटीग्रल मल्टीपल. लेकिन कहीं पर ऐसा नहीं आ सकता कि n इज इक्वल टू 0.5 और 0.7. तो ये उसी तरह का है कि इनके गैप में दैट इज 1, इट इज 2, इट इज 3, तो n1 तो ये पॉसिबल है. इससे नेक्स्ट n2 पॉसिबल है. बीच में जो गैप है दैट इज नॉट अलाउड एट ऑल. So this type of certain allowed and not allowed values, that is the concept of the quantization. It is related with the angular momentum. It is also related with the energy of the electron in the nth orbital. Energy of the electron in the nth orbital, it is given as 2 pi square z square e4 m n square upon h square. अगर हाइड्रोजन का केस है तो हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1 हो जाएगी. सो इट इज 2 पाई स्क्वायर e4 m n स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर. इफ यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इट इज 1.66 इंटू 10⁻19 कूलम. मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, प्लैंक्स कांस्टेंट दैट इज 6.625 इंटू 10⁻34. When all these values are being substituted, we get the value of energy in the nth orbit. En is equal to minus 1312 divided by n square. h square नहीं होगा, यहां से गलती से आ गया है, k किलो जूल पर मोल. So it is minus 1312 divided by n square, not n square, h square. h की वैल्यू जो वो फिलअप कर दी है. So that is the energy of the electron in the nth orbit. तो इसमें भी n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे 1 2 3 4. तो दिस इज आल्सो ए कंसेप्ट ऑफ द क्वांटाइजेशन. द इन बिटवीन वैल्यूज 0.5, 0.2, 0.8 दीज वैल्यूज आर नॉट अलाउड. 2.5 या 2.6 जो है n की वैल्यू अलाउड नहीं है, लेकिन 1 2 3 4 जो है वो अलाउड है. सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन विच हैज बीन यूटिलाइज्ड फॉर द Bohr in order to give the model of an atom or in order to specify the path of the electron around the nucleus, that is circular path, which he said that these are the orbits and they are not variable but they are being fixed orbitals. Now what is the success or regarding the Bohr model of an atom? It well explain the stability of the atom. Stability of the atom इसलिए well explain बोला है क्योंकि रुदरफोर्ड की एक ड्रॉबैक रही कि रुदरफोर्ड ने यह कहा कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो उसका पाथ फिक्स नहीं है. तो मैक्सवेल ने एक पॉइंट दिया था कि जब भी कोई चार्ज बॉडी है और वो मूवमेंट में ही है तो वो एनर्जी गेन नहीं करेगी, जबकि क्या करेगी, लूज करेगी. अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है तो छोटे ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है, और अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करता है तो वो हायर ऑर्बिट से जो वो छोटे ऑर्बिट में आएगा. तो मैक्सवेल ने यह कहा कि अगर चार्ज बॉडी है तो चार्ज बॉडी जो एनर्जी लूज करेगी. अगर ये एनर्जी लूज करता है तो एनर्जी लूज करने से इसका ऑर्बिट छोटा हो जाएगा, और छोटा होते होते ये किसके साथ अटैक कोलैप्स कर जाएगा. इट विल स्ट्राइक विद द न्यूक्लियस एंड एटम विल नॉट एग्जिस्ट. सो सी हियर, बाय द लॉस ऑफ एनर्जी that will collide with the nucleus.
So that was given by the Rutherford and that was the major drawback regarding the Rutherford model. तो बोहर ने क्या किया है, उसने ये कहा कि जब भी वो ऑर्बिट में है तो उसका ऑर्बिट जो फिक्स है, इट कैन नॉट चेंज दैट ऑर्बिट बट इट कैन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू द अनदर ऑर्बिट. तो उसने उस पाथ को क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है. क्या किया है, फिक्स किया है. और यही बात जो है बाद में कि उसकी फिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल वो ड्रॉबैक बनी किसकी, बोहर मॉडल की भी. इट आल्सो एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में एक्सप्लेनेशन के लिए क्या है, पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट में है, 1s में है या पहले सेल में है तो एनर्जी गेन करने से वो दूसरे सेल में जाएगा. तो अगर जाता है तो वहां से क्या होना चाहिए, केवल जब वो वापस आएगा तो एक रेडिएशन जो वो कोई ना कोई प्रोड्यूस होनी चाहिए. लेकिन जब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा लिया जाता है तो उसमें लाइमन सीरीज, बल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, पफेंड सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, बहुत सारी सीरीज आती हैं. इसमें कुछ विजिबल रीजन में है, कुछ यूवी रीजन में है और कुछ जो है वो इनविजिबल है और कुछ जो है वो विजिबल पार्ट में आएंगे. यूवी रीजन में, अल्ट्रावायलेट रीजन में है. When there is a presence of single electron, how we can get the 5 lines? Lyman series, Balmer series, Pfund series and bracket series. इस तरह की 5 लाइन कैसे आ सकती हैं? तो उसकी एक्सप्लेनेशन क्या दी, बोहर ने दी है कि जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके फर्स्ट ऑर्बिट में जा रहा है. इट मे गो टू द सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. उसमें एम्प्टी है. किसमें, हाइड्रोजन में फर्स्ट ही है, पहले में एक इलेक्ट्रॉन है, ऊपर वाले सारे क्या हैं, खाली हैं. तो एक में नहीं, फिफ्थ ऑर्बिट में भी जा सकता है, फोर्थ में भी जा सकता है और थर्ड में भी जा सकता है और सेकंड में भी जा सकता है. सो वेन एवर इट कम्स बैक फ्रॉम द फिफ्थ ऑर्बिट इट विल प्रोड्यूस वन ऑफ द सीरीज. अगर वो फिफ्थ से फर्स्ट में वापस आता है सो वन ऑफ द सीरीज इज बीइंग प्रोड्यूस्ड. इफ इट कम्स बैक फ्रॉम द फिफ्थ टू द सेकंड देन इट कैन प्रोड्यूस द different series. It may come back from the fifth to the third, it can produce the another series. It may come back from the fifth to the fourth level. वो डिपेंड करता है कि आपने सिस्टम को एनर्जी जो है वो कितनी सप्लाई की है. अब फिर बात आ गई कि एक ही इलेक्ट्रॉन था तो एक इलेक्ट्रॉन पांचवें में क्यों जाएगा, किसी के चौथे में क्यों वापस जाएगा या थर्ड में वापस आएगा या सेकंड में आएगा. तो ये मतलब नहीं कि सिंगल एटम को एक्साइट किया जा रहा है. आपके पास जब भी सैंपल होगा तो हाइड्रोजन जो वो 2 ग्राम सैंपल में एवोगाड्रो नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स होंगे. कितने, एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट कंटेन्स 2 टाइम्स एवोगाड्रो नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. तो उसमें किसी एक में जो है वो फर्स्ट लेवल में मूव हो सकता है, किसी में फिफ्थ में हो सकता है, किसी में फोर्थ में, किसी में थर्ड में, किसी में सेकंड में. So these possibilities we are having. That is why we are getting the 5 different lines: Lyman series, Balmer series, Paschen series, Pfund series, and the bracket series. So Bohr model, it is well explaining the spectra of the hydrogen atom. It is well explaining the stability of the atom. What are the now limitations regarding the Bohr model? बोहर मॉडल ने, मैंने अभी बात की थी कि ऑर्बिट्स का कंसेप्ट दिया. उसने कहा कि ऑर्बिट्स जो है वो फ्लैट हैं और पहली लाइन है सर्कुलर ऑर्बिट्स आर नॉट फ्लैट बट 3 डायमेंशनल. तो ऑर्बिट के लिए जो है वो उसने कहा कि ये सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं और कैसे हैं, फिक्स ऑर्बिट्स हैं. तो सबसे बड़ी बात ये कि जो एटम के अंदर ऑर्बिट्स हैं वो फ्लैट नहीं है, दे आर 3 डायमेंशनल. तो यूजुअल पिक्चर जो उसने बताई, किसने, बोहर ने, बोहर टोल्ड अबाउट दिस पिक्चर दैट दिस इज ए फ्लैट पाथ. जबकि पाथ जो है वो फ्लैट नहीं है, वो किस तरह का पाथ है, दैट इज ए 3 डायमेंशनल वन. तो ये पिक्चर जो साइड में नजर आ रही है आपको, दिस इज कंटेन दैट एटम कंटेन्स द 3 डायमेंशनल नेचर ऑफ द ऑर्बिट्स. तो उसमें एक ओरिएंटेशन नहीं है, ये इधर है, ये इस साइड को, वो उस साइड को. तो इस तरह से क्या है, दैट इज ए 3 डायमेंशनल मॉडल, दैट इज नॉट ए फ्लैट मॉडल. सो दैट इज द फर्स्ट
problem related with the Bohr model, that he said that the orbits are flat but they are not flat but they are three dimensional. जो बोहर का मॉडल है वो हाइड्रोजन के एटम को एक्सप्लेन कर सकता है, हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स को या एटम्स को एक्सप्लेन कर सकता है. हाइड्रोजन लाइक का मतलब है कि जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो, जैसे हीलियम का मॉलिक्यूल उसमें दो हैं, अगर He पॉजिटिव कर दो तो उसमें एक बचेगा, He पॉजिटिव कर दो तो क्या बचेगा उसमें एक. तो उस तरह का कोई एटम है जो लाइक हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स को के मॉडल को एक्सप्लेन कर सकता है. लेकिन जहां मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आता है, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम. It is not able to explain the hyperfine splitting of the spectra. What is hyperfine splitting of the spectra? जो हाइड्रोजन के केस में लाइमन सीरीज और बल्मर और पास्टनर सीरीज आ रही थी, अगर उनको सिंपल तरीके से देखा जाए या उस माइक्रोस्कोप से देखा जाए जिसकी रेजोल्यूशन पावर कम है, तो सिंगल लाइन नजर आती है. लेकिन जब इसको पावरफुल माइक्रोस्कोप से चेक करें तो वहां सिंगल लाइंस के बजाय आपके पास जो है यू विल गेट अ बंच ऑफ द लाइंस. एक लाइन नहीं है, एक सिंगल लाइन जो मल्टीपल लाइंस में स्प्लिट हो रही है. सो दैट इज विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप विच इज हैविंग मोर पावर टू रिजॉल्व. सो इट कैन नॉट एक्सप्लेन दिस स्प्लिटिंग ऑफ सिंगल लाइन इनटू द मल्टीपल लाइंस. इसको बोलते हैं हाइपरफाइन स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रा. क्या बोलते हैं उसको? Hyperfine splitting of the spectra. It is not also able to explain Stark effect and Zeeman effect. What are these? अगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में जो है वो स्पेक्ट्रल लाइंस के ऊपर जो मटेरियल है, जैसे हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा ले रहे हैं तो हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाए तो एक लाइन जो है वो मल्टीपल लाइंस में स्प्लिट हो जाती है. सिंगल लाइंस. So when electric field is applied, then single line is splitting into the multiple lines. That is the Stark effect. What is the Zeeman effect? When not the electric field but the magnetic field applied across the sample, then again there is a splitting of the line, spectral line, into the multiple lines. So this splitting cannot be explained with the help of the Bohr model of the atom. So Stark effect and Zeeman effect it cannot explain. Moreover, the main problem is the Bohr, he is very much definite about the position and the momentum. Means whenever you are saying that this is the path, in this path the electron is revolving, it means you are fixing the position of the electron. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी. क्या यूज करते हैं? प्रोबेबिलिटी. परहैप्सनेस इज देयर, कि यहां इलेक्ट्रॉन हो सकता है. जहां बात प्रोबेबिलिटी की हो वहां डेफिनेट पोजीशन की बात नहीं की जा सकती है. ना तो डेफिनेट पोजीशन की बात की जा सकती है, ना डेफिनेट मोमेंटम की बात की जा सकती है. So Bohr model, it is lagging in these 2 points, that he is very much definite about the position and momentum, but these are overruled by the uncertainty principle. These are overruled by the uncertainty principle.